Okay, good morning, students, once again. So, till now we have finished 5 chapters of MRE up to antennas, I mean, microwave antennas, where we studied horn antennas, their types, then dish antennas, their types as well, then shortcoming, difficulties, and feeding mechanism, everything we have studied, right? All those antennas based on microwave frequency. And now we are going to study microwave communication systems. Right? Introduction. Till now we have studied the following: key microwave sources, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਫॉर the generation and amplification of microwave frequency signal ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸੀਲੇਟਰਸ, ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸੀਲੇਟਰਸ, ਆਸੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਗਨ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਇਓਡ ਪੜੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਪਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲੋ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਟੀਨਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਰੇਡੀਏਟਿੰਗ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਗਨਲਸ ਇਨ ਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। However, in this chapter, we will study the most important application aspect of microwave signals. ठीक है, वो used for communication of information over long distances, that is continental and intercontinental, even around the globe. ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ? ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਸਪੈਕਟ ਆ, ਪਹਿਲੂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ? ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਟੂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਦਰ ਇੰਟਾਇਰ ਗਲੋਬ। ठीक है, तो मेन फंक्शन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम और माइक्रोवेव लिंक, whether it is an analog or digital, is same as that of the copper based coaxial cable or fiber। ਜਿੱਦਾਂ coaxial cable ਜਾਂ fiber optic cable ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿੰਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲੌਗ ਭੇਜਣੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ। ਐਨਾਲੌਗ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਨਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਐਨਾਲੌਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲੌਗ ਵੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ। ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਕੈਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਸਿਗਨਲ ਥਰੂ them at low frequency range but traverse EM waves, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਔਰ TEM waves carry at high frequency। ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਕੇਬਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ TEM ਵੇਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਿਸ ਰੇਂਜ 'ਚ? ਇਨ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮਸ operating at frequency above 1 GHz propagate mainly in a line of sight or free space mode, whether they are on the ground or in the satellite system। मतलब LOS ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਵ become the workhorses of long distance telephone communication systems। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਸਿਸਟਮਸ ਜਾਂ ਲਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਹਾਰਸਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ these systems offer the required transmission bandwidth and reliability to allow the transmission of many thousands of telephone channels as well as several TV channels over the same route and using the same facility। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਟੈਰਾਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਗੀਗਾਹਰਟਸ 'ਚ ਹੈ।
तो नीचे वाले सिग्नल तो बहुत ने, जिदा वॉइस है, कम्युनिकेशन है, डाटा है या वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, MB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਮੈਗਾਹਰਟਸ। तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो स्पैशली टैलीकम्युनिकेशन ਜਾਂ ट्रांसमिशन ਜਿਹੜੀ बैंडविड्थ काफ़ी ये सिस्टम्स ऑफर करते हैं। ठीक है, तो एंड मोर ओवर दे आर रिलायबल इन नेचर एज वैल, क्योंकि जी कम्यूनीकेशन एक एंड तो की है, दूजे एंड से इन्फॉर्मेशन पहुँचनी है टू अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन चैनल एज वेल एज सेवरल टीवी चैनल्स ओवर द सेम रोड। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ आ देखो हम 10 तो 12 गीगाहर्ट्ज़ आर यूज फॉर अबव सेट पर। ऊपर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन चैनल्स एंड सेवरल टीवी चैनल्स ਨੂੰ कैरी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी 10 तो 12 गीगाहर्ट्ज़ तक कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है। और प्रोपिगेशन केड़ा मैथड है, लाइन ऑफ साइट वाला। ठीक है, स्पेस वेव प्रोपिगेशन भी असं बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ ब्रॉडबैंड रेडियो ट्रांसमिशन इन पॉइंट टू पॉइंट सर्विस। क्लियर, हुण आपां क्लासीफाई करते हैं जिहड़े लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशनस ने। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन सिस्टम्स नूं इन जनरल क्लासीफाई करिए, फिर आप देखते हैं भी साढ़े लिए किहड़ा काम होना माइक्रोवेव इंजीनियरिंग नूं मुख रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम यानी ट्रांसमिशन लिंक बिटवीन ट्रांसमिटर रिसीवर सिस्टम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिटर सिस्टम कैन भी क्लासीफाइड किदां, एक तो कोएक्शियल केबल सिस्टम्स ने, उन्होंने फ्रीक्वेंसी रेंज की है जिदा DC तो लैके 100 मैगाहर्ट्ज़ तक, पता लग गया। फिर इस तो उपर आ गया रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जिन्हों की फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मैगाहर्ट्ज़ तो लैके 300 गीगा, ये माइक्रोवेव रेंज है। आपां नूं इहदे नाल मतलब है नंबर 2 नाल। तीसरी आ गई है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ देखो आ देखो 100 टेराहर्ट्ज़ तो लैके वाह 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 देख लो किन्ने टेराहर्ट्ज़ हो गया 1000 टेराहर्ट्ज़ इन दी optical region of the electromagnetic spectrum. So we are concerned with, but in this chapter we will concentrate on radio systems only. मतलब क्योंकि ये जी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं, पता लग गया। अगे as already stated that microwave radio communication system deal with the radiation of EM waves, electromagnetic waves from one point to another point through the free space. Radio signal path and its signal strength between transmitter and receiver under microwave communication depends on the following parameter: रेडियो सिग्नल पाथ एंड इट सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, केड़ा उन्हें पाथ लेना, फिर वो सिग्नल दी सिग्नल ने केड़ा रेडियो सिग्नल केड़ा पाथ लेना, और उस तो बाद उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ किहदे विच ट्रांसमिटर ते रिसीवर दे विच अंडर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन किस पैरामीटर ते डिपेंड करती है। 3-4 देखो, मान लो जो ट्रांसमिटर ते रिसीवर दे विच आपां सिग्नल नूं प्रोपीगेट कराउणा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज ते किहड़े-किहड़े फॉलोइंग पैरामीटर्स तो वो सिग्नल ट्रांसमिशन डिपेंडेंट है। जब कहता जिस मीडियम के विच असी उन्होंने प्रोपीगेट कराना एटमोसफेयरिक मीडियम एंड इट्स कंडीशन, वो किदां दी कंडीशन है, मतलब एटमोसफेयरिक मीडियम किस तरह, मीडियम तो है ही है एटमोसफेयरिक मीडियम, पर वो कंडीशनस किदां दी, फॉगी तो नहीं, ज़्यादा रेनी तो नहीं, या डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं ज़्यादा एयर दे विच, जां डार्क जो भी है, मतलब किदां दा एनवायरनमेंट है। फिर सिग्नल जिदा असी किन्नी फ्रीक्वेंसी से असी उन्होंने ऑपरेट कराना सिस्टम में, और किहड़ी टाइप की असी प्रोपीगेशन यूज़ करनी, यानी मोड मैथड किहड़ा, मोड किहड़ा, ठीक है, तरीका किहड़ा, क्या स्पेस वेव का, ग्राउंड वेव का, या स्काई वेव का। ठीक है, दस डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ प्रोपीगेशन रेडियो कम्युनिकेशन कैन फर्दर भी क्लासीफाइड। आ देखो मैं जी गल की वो आ गई, तो मोड ऑफ प्रोपीगेशन से डिपेंड करता भी किहड़ा मोड है, जो क्या ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन करनी है, लाइन ऑफ साइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करनी है, स्काई वेव या आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन करनी है, ट्रूपो स्कैटर या ओवर द हॉरिजन कम्युनिकेशन करनी है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन करनी है। तो जिस टाइप की कम्युनिकेशन उस टाइप का मोड ऑफ प्रोपीगेशन होगा। ठीक है, बट स्टडिंग दी असी कंसर्न है कि नंबर 2 च, हाँ असी इन्ना ही कंसर्न है, पर तुहाडे रेडी रैफरेंस वास्ते आप स्काई वेव आयनोस्फेरिक प्रोपीगेशन जी CS1 में सी उत्थे भी आप पढ़िया सी, थोड़ी जहा ट्रोपो स्कैटर कम्युनिकेशन भी पढ़िया सी JS कातरे की बुक के विचों। ठीक है, नहीं ईवन सैटेलाइट बारे भी मेरे ख्याल सैटेलाइट शायद उदों भी सीगा, हाँ सैटेलाइट भी सीगा, हुण भी है, ऑप्टिकल फाइबर सीगा पर उन्हें वो चकदा। ठीक है, तो आप जड़ियाँ 4-5 तरह दी प्रोपीगेशन आप चौथे सैम च कीतियां, और फिर भी तुहाडे रेडी रैफरेंस वास्ते फिर मैं तुहानूं दस देना। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਲੀਏ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਮੋਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਡਸ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਫਰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਐਂਟੀਨਾ ਟੂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ in microwave communication, ठीक है। Here propagation means traveling of microwave signal from transmitter to receiver through a channel or medium, ठीक है। channel या medium is simply a physical space between transmitter receiver, okay। this propagation is possible by various methods and these methods are called modes of propagation। ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੋਡ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮੋਡਸ ਆ ਗਏ। In an Earth's environment, electromagnetic waves propagate in the way that depend not only on their own properties but also on the environment, ठीक है। अर्थ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, এনवायरमेंट ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਥਰੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਚਲੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ठीक है। वॉइस फ्रीक्वेंसी, हाँ इस तो पीछे वॉइस फ्रीक्वेंसी, मीडियम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई, एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। जिदा जिदा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ उदों उदा घट रही है, ठीक है। तो हुण पूरे स्पैक्ट्रम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਨਾਰ ਹੈ, ਸਰਵੋ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ मीडियम तो लैके सुपर हाई तक, तो ये मैगाहर्ट्ज़ तो गीगाहर्ट्ज़ की रेंज के ये रेडियो वेव्स हैं। तो साड़ी जी प्रॉब्लम है, साड़ी जी कम्युनिकेशन है असी इस रीजन च करना, मतलब जो माइक्रोवेव सिग्नल है असी इस रीजन च करना। क्लीयर है? हेलो बच्चों, हाँ जी सर, सुन रहे हैं? अब पहली बार अज 9 के 9 बच्चे जुड़े है ना। चलिए, तो इस तो ऊपर आ गई इन्फ्रारेड, ठीक है। फिर लाइट रीजन आ गया, अल्ट्रा वायलट आ गई, ये लाइट वास्ते है क्योंकि लाइट के 3 रीजन है, इन्फ्रारेड, की बोलते हैं विजिबल जो स्पैक्ट्रम है जिथे, और उस तो बाद फिर अल्ट्रा वायलट, ठीक है। फिर इस तो बाद एक्सरेज, गामा रेज तो कॉस्मिक रेज, ये एक्सपैरीमेंटल स्टेज है, बहुत हाई फ्रीकुएंसी है। तो वी आर कंसर्नड विद दिस रेडियो वेव्स, मतलब असी मीडियम तो हाई फ्रीकुएंसी तो सुपर तक जाना, समझ आ गई? सुपर हाई फ्रीकुएंसी, क्लीयर? ये तो बड़ी बार आप पढ़िया की भला इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम बहुत बार पढ़िया। तो although space is the medium through which the EM waves are propagating but depending upon the wavelength and frequency, ठीक है। Although space is the medium through which EM waves are propagating but depending upon the wavelength and frequency, distinct methods which can take place। wavelength कितनी है, फ्रीकुएंसी कितनी है जी आप ऑपरेट जिते सिस्टम ऑपरेट करना, और स्पेस का मीडियम है ही आ जिहदे EM वेव्स ने प्रोपिगेट करना, पर जी प्रोपिगेशन है वो किस फ्रीकुएंसी या वेवलेंथ पे है वो हिसाब नाल मैथड ने जिदा पहले दसिया ग्राउंड वेव या सरफेस वेव, ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन या सरफेस वेव, स्काई या आयनोस्फेरिक वेव प्रोपिगेशन, स्पेस वेव प्रोपिगेशन, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपिगेशन ते डक्ट प्रोपिगेशन। पता लग गया? डिपेंड करता फ्रीकुएंसी वेवलेंथ कितनी है। दीज प्रोपिगेशंस आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ's एटमॉस्फेयर being the most important communication medium। आप अर्थ के एनवायरमेंट की गल कर देना, थोड़ा जहा मैंने छोटा करता, नजर आ रहा? हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 5वें सेम का 100% रिजल्ट आया। हेलो जी सर,
जी 100 सर। 100 तो आना ही सी, थैंक्स टू ऑनलाइन। चलिए कोई नहीं, वो बाद च गल करते हैं। सो आ देखो एटमोसफीयर, अर्थ के एटमोसफीयर, अर्थ है ये इंटायर एटमोसफीयर है। तो अर्थ के एटमोसफीयर में डिफरेंट लेयर च वंडिया हुआ, ठीक है नहीं। साडी ग्राउंड है, तो ये आ जी ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन है वो ये अलोंग ही करती ਜਾਂ कुछ हाइट पे बस, ठीक है। यानी ये कह रही भी ट्रोपोस्फीयर लेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ट्रोपोस्फीयर जी लेयर है वो अर्थ के सतह तो लैके उपर तक 18 किलोमीटर तक, और इस लेयर के ਵਿੱਚ गैसां ਦਾ 90% वॉल्यूम ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਤੇ इस तो उपर, ठीक है, अप टू 70 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर। ईवन इस तो उपर मीजोस्फीयर है, उस तो उपर आयनोस्फीयर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਂਹ ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਿਗਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੇਸ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ उस तो बाद स्काई वेव प्रोपिगेशन आ जाती है, वो जी फ्रीकुएंसी रेंज है 3 गीगा तो लैके नहीं सॉरी 3 मैगा तो लैके 30 मैगाहर्ट्ज तक हाई फ्रीकुएंसी रेंज है। ट्रांसमिटिंग एंड तो सिग्नल जो असी ट्रांसमिट करवाने एटमोसफीयर के तकरीबन 500 किलोमीटर अर्थ की सतह, ठीक है। आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर का इतने की मतलब मैं तुहानूं उदों भी दस्सिया सी भी इस स्फीयर दे विच आयनोस्फीयर रेंज दे विच जिहड़ा सन है उसकी अल्ट्रावायलट रेज जिहड़ी आ उत्थे दे मौजूद उस लेयर दे विच मौजूद जिहड़े मॉलीक्यूल्स ने उन्होंने आयोनाइज कर देंदी, समझ आ गई, उन्होंने आयोनाइज कर देंदी है। ये तुहानूं मैं पहला भी पढ़ाया सी। और उन्ना पार्ट जो आयोनाइज करदे उहदे पॉजिटिव ते नैगेटिव आयन्स बन जाते हैं। आयोनाइज कर दिता जानी एक किस्म का उसकी डेंसिटी इन्नी कि ज़्यादा बढ़ जाती है भी वो एक किस्म का पार्शियल मिरर की तरह एक्ट करता, समझ आ गए, मिरर सुन रहे हैं, हेलो जी सर। हाँ। हुण जो सिग्नल जो थल्लों ट्रांसमिट करना उन्हें दोनों मैथड ही फॉलो करने, क्योंकि अप टू 500 किलोमीटर तक जो एटमोसफीयर है वो बड़िया सारिया होर भी थले लेयर्स है जिथे टैंपरेचर की वेरीएशन भी है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की वेरीएशन भी है। मतलब भावें 10 किलोमीटर तो अगले 20 किलोमीटर तक जाइए तो तुहानूं लेयर दे विच फर्क नज़र आऊगा, टैंपरेचर की दा भी हो फर्क पै सकता, प्लस डस्ट पार्टिकल का भी पै सकता, तो जां होर जिहड़े कोई पार्टिकल्स होणगे उन्हां लेयर्स की जिहड़ी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है वो चेंज होंदा, जिहदे करके वेव्स फिर बैंड करदियां। ये रिफ्रैक्शन मैकेनिज्म भी इह आउंदा ते रिफ्लैक्शन भी आउंदा। रिफ्लैक्शन का मतलब की है, क्योंकि उत्थों बेसिकली टकरा के वापस आना, अगर 30 मैगाहर्ट्ज तो फ्रीकुएंसी ज़्यादा आ तो फिर वो पेनीट्रेट कर जाएगी ऊपर वालों, ठीक है, दैट विल नॉट कम बैक, इदा बेंड हो जाएगी। और जी ये बेंडिंग है ये जिस पर्टिकुलर लेयर है वो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स करके बेंडिंग होगी, समझ आ गई, हेलो हेलो बोलो। हाँ हाँ जी जी सर, हाँ हाँ जी जी। सर। जी सर। ऊपर आयनोस्फीयर तो ऊपर भी एक्सोस्फीयर है, और असी उन्होंने कई बार इंटर प्लैनेटरी स्पेस भी बोलते हैं, मतलब इट इज़ मोर दैन 500 किलोमीटर। वो आप थोड़ा बहुत देखते हैं ये बारे कहता की है, ठीक है नहीं। तो EM वेव की प्रोपिगेशन वंस द सिग्नल लीव्स द एंटीना यानी रेडिएट हो चुका, इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 रूट्स। किहड़े, मान लो जो सिग्नल एंटीना तो निकल गया रेडिएट हो गया, उन्हें कोई 3 रूट लेने हैं, किहड़े, इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 रूट्स। टाइप ऑफ द प्रोपिगेशन डिसाइडेड बाय द रूट टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द रिसीवर फ्रॉम द टॉप। प्रोपिगेशन किदां दी आ, रूट किदां दा जिहड़ा सिग्नल ने लिया, ताकि ट्रांसमीटर तो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचे। एक ऑल 3 बेसिक पास
दैट रेडियो सिग्नल कैन टेक, वो किहड़े तीन पाथ किहड़े लै सकदा, अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ यानी ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन करके, अप टू द लेयर आयनोस्फीयर एंड बैक जिथे जिन्होंने स्काई वेव प्रोपिगेशन की गल करते हैं, और फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रिसीवर ने स्ट्रेट लाइन सीधा ही जी LOS है ये स्पेस वेव प्रोपिगेशन होगी। समझ आ गई? हेलो हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, so path taken by radio signal depends upon so many factors, including the frequency of signal, atmospheric condition and time। ये पहला भी मैं पहला आप गल की सी path taken by the radio signal depends upon so factor, उत्थे आप फ्रीकुएंसी की, वेवलेंथ की, एटमोसफेरिक कंडीशन की तो गल की, पर टाइम ऑफ डे की नहीं गल की। पर चलो एनीवे जो टाइम ऑफ डे आ वो एटमोसफेरिक कंडीशन ही आ गया किस्म का, भी अज दिन साफ आ, धुप ज़्यादा निकलनी है, ਜਾਂ ਕਲਾउਡੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੈਮ CH ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋ ਰੇਂਜ ਹੈ 30 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮੈਗਾ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ ਬੈਂਡ ਇਨ रेडियो बैंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, यूज फॉर मीडियम एंड मीडियम वेव बैंड इन, हाँ सॉरी, यानी मीडियम फ्रीकुएंसी के जिदा आप मीडियम वेव से जिदा वो चलाते हैं AM सिग्नल मॉड्यूलेट करके वो एम्पलीट्यूड करके, कहते नहीं ये आकाशवाणी जलंधर है 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, जी 343.6 मीटर वो वेवलेंथ है, 873 किलोहर्ट्ज़ उसका कैरियर है। समझ आई? पर फ्रीकुएंसी रेंज कितनी है 535 किलोहर्ट्ज़ तो लैके 1635 किलोहर्ट्ज़, पता लग गया? या 500 तो कई 500 भी लिख देते, कई 550 भी लिख देंगे, उधरले एंड ते 1650 भी लिख देंगे। सो इस फ्रीकुएंसी रेंज के असी मीडियम वेव नूं ऑपरेट करते हैं। मीडियम वेव का मतलब है एंपलीट्यूड ते एंपलीट्यूड नाल मॉड्यूलेट होने वाली, पता लग गया? इस तो उपर जावांगे 3 तो लैके 30 मैगाहर्ट्ज़ दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीकुएंसी होर घट गई, सॉरी फ्रीकुएंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट गई, तो फिर वेव जो लेंथ घटी तो शॉर्ट वेव हो जानी। वो समझ आ गई? वो लिखा ना यूज फॉर शॉर्ट वेव बैंड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो क्योंकि 3 तो 30 मैगाहर्ट्ज़ है, जो FM है वो किन्ने तो आ, FM किन्ने तो आ 88 तो लैके 108 मैगाहर्ट्ज़, ठीक है जी। पर ये असी स्काई वेव प्रोपिगेशन ही करते हैं। नैक्सट उस तो उपर है 30 मैगाहर्ट्ज़ 30 किलो, ठीक है, 3 मैगा तो 30 मैगा, ठीक है। वो जिस लेवल की ट्रांसमिशन है हाई फ्रीकुएंसी तो बढ़िया। सो एप्लीकेशन की है यूज फॉर TV एंड FM ब्रॉडकास्ट, तो प्रोपिगेशन का नाम की है स्पेस वेव प्रोपिगेशन। इधरले पासे ये थल्ले वाले का नंबर की है स्काई वेव प्रोपिगेशन या आयनोस्फेरिक प्रोपिगेशन, पता लग गया? सो शॉर्ट वेव बैंड जो है वो 5 मैं लगता मैगाहर्ट्ज़ तो लैके 15 मैगाहर्ट्ज़ तक। एनीवे अगे चलते हैं आप ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन की गल करते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन की ये मैं उदों भी पढ़ाया सी तुहानूं। ग्राउंड वेव इन ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन ए वर्टिकली पोलराइज्ड इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट एट जीरो और स्मॉल एंगल। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन के विच वर्टिकली पोलराइज्ड EM वेव्स ने रेडिएट होना, ठीक है, वेव्स रेडिएट एट जीरो और स्मॉल एंगल, ठीक है। दीज वेव्स आर गाइडेड बाय कंडक्टिंग सरफेस ऑफ द अर्थ। इन्हां जदों असीं वेव्स निकलियां जिहड़ियां वर्टिकली पोलराइज्ड है, इन्हें गाइड कौन करता? अर्थ, अर्थ की कंडक्टिंग सरफेस, एंड आर कॉल्ड एज ग्राउंड वेव्स और सरफेस वेव्स। पता लग गया? सो हाँ जी सर। हाँ, इन दिस मोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट्स क्लोज टू अर्थ सरफेस। मतलब जो सिग्नल ने प्रोपिगेट करना इस प्रोपिगेशन मैथड के अर्थ के नज़दीक ही करता, ठीक है नहीं। वेव ट्रैवल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पर वेव्स ने ट्रैवल कितों होना? क्योंकि अर्थ के नज़दीक जो
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਅਰਥ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲਸ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਇਸ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਓਨਲੀ ਓਵਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਈਐਮ ਵੇਵਸ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲੈਂਦੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲੈਂਦੇ ਅਰਥ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸ਼ਾਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਟਿਲਟ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਵਧਾਇਆ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵਧਾਇਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਟਿਲਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? So as stated earlier, wave must be vertically, इसे करके क्या wave must be vertically polarized to avoid short circuiting of the electric component. समझ आ गई? इसे करके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ wave ਨੂੰ vertically polarize ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ a wave induces current in the ground over which it passes, ठीक है, and thus loss some of energy by absorption. A wave induces current in the ground over which it passes, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਸ ਲੋਸ ਸਮ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸੈਕੰਡਲੀ, ਵੇਵ ਇਜ਼ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਵੇਵ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਿਲਟਡ। ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਟੈਨੂਏਟ ਕਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ this happens due to the irregularities of earth's surface. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। तो with the increase in the frequency, angle of tilt go on increasing, and when it goes beyond a permissible range, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ। ਹੈਲੋ, हाँ बच्चों। हाँ जी सर। So thus it causes a reduction in the field strength. तो इस करके obviously, क्योंकि जब vertically polarize नहीं करते तो वो जड़ा even horizontal component entirely ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨੀ attenuate ਹੋ ਜਾਏਗਾ। This ground wave propagation is possible only, फिर किस frequency range तक possible है? up to only 2 megahertz। समझ आई? 2 मेगाहर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसी ਦੇ मेड फॉर। ठीक, बियॉन्ड 2 अर्थ's attenuation increases, the ground wave propagation is not suitable at a higher frequency. That means it is not suitable for micro range of frequency. Obviously higher frequency कौन ने? माइक्रोवेव। ਇਹਦਾ मतलब माइक्रो वास्ते उन्हें ऐसे रेफरेंस वास्ते देता, पर माइक्रो फ्रीक्वेंसी ਲਈ यूज क्यों करांगे? क्योंकि पावर बहुत घट है, गेन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਲਿਆ। That means okay, users surface propagation is commonly used for ship to shore communication, for radio navigation, maritime mobile communication. Surface waves are used at frequency as low as 15 kilohertz. मैं तुम पहले दसा ये लो फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम, ठीक है। Advantage, surface waves can be used to communicate between two locations in the world if enough power transmitted power is transferred. मतलब ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
these waves are unaffected with the change in the atmospheric condition। तो यही ਇਹਦਾ प्लस पॉइंट है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਲਾਰਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। these waves are limited to high frequency and medium frequency requiring large antennas, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी पे भी टॉप बैंड ਉਹਦੇ ਲਈ meant for applications, ठीक है। losses in these waves vary with surface material and composition। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम करावांगे बच्चों, ठीक है। हेलो, ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ला, आई एम गोइंग टू स्टॉप। हाँ जी सर, ले लिया स्क्रीनशॉट।